Okay, ji. Bismillah Rahman Rahim. Welcome everybody who have joined us today. I will be your host today. My name is Imran Bhamani, and I lead the digital outreach team for Aga Khan Education Board for Pakistan. We have a very lovely webinar lined up today. और आगा खान एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है ये तकरीबन हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हम करियर फैसिलिटेशन के हवाले से हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं। और हम if you go and see our YouTube channel, you will notice that all the webinars are already there. हमने कंप्यूटर साइंस पे भी किया है, मीडिया साइंस पे भी किया है, और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम अपने वेबिनार्स करते हैं। आज का जो ये वेबिनार है, इसका जो टॉपिक है वो है करियर पाथवेज टुवर्ड्स ACCA, and we have our guest with us, Mr. Khurram Iqbal. I'll just introduce him quickly, but before that I'll just like to set some house rules. आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को चैट करने की इजाज़त है. यू कैन पुट द क्वेश्चंस इन द चैट विंडोज, बट यू कैन नॉट unmute yourself. In the end of the program, if we have some time left, we might be able to take some live verbal questions. I am very sure कि हमारे जो आज का टॉपिक है उसके जो सवालात हैं उसमें सारे जवाबात आपके ऑलरेडी मौजूद होंगे. और we have a good presentation also which will be given by Mr. Khurram. Now I will quickly introduce Mr. Khurram. Our guest speaker is a business relationship manager at ACCA Pakistan. He has over 2 decades of experience in the education industry, and including 16 years of dedicated service at ACCA. His areas of expertise and interest they revolve around insights and creation of innovative, customized solutions to enhance and facilitate students' educational journey. So, a very warm welcome to Mr. Khurram Iqbal. How are you doing, sir? Walaikum assalam, and thank you very much, Imran, for having me today. I'm very well. सही. तो I think we should just jump right into the presentation. बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास आज आपके लिए. हमें मालूम I'll है be कि happy to answer all ACCA your questions. has been a lot of it's been around since a lot of years, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये सर्टिफिकेशन लेते भी हैं. some people know about it, some people are still learning, but जैसा कि हमें मालूम है कि अकाउंटेंसी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है. तो क्या आप बता सकते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि व्हाट इज ACCA ऑल अबाउट, द सर्टिफिकेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये करने के बाद, और किस तरह से आप दाखिला ले सकते हैं इसमें, एंड व्हाट आर द जनरल पाथवेज प्लीज. सो ओवर टू यू Khurram. Thank you very much, Imran. And I welcome all the participants, all the attendees in today's session. So thank you very much for joining us today. And as Imran mentioned, so there's a brief outline what we'll be discussing today. So we'll navigate about the professional accounting qualification. What is the professional accounting qualification? Then we'll talk about the ACCA qualification. And when we'll talk about the ACCA qualification, we'll definitely tell you in detail how the overall the support mechanism and the ecosystem work for our students in Pakistan and globally as well. And we'll also talk about the employability part, because whatever the education one gets, they are looking forward for the employability, right? So we will tell you in detail how the employment structure works in Pakistan and globally as well. And last but not least, there will be an over to you section, which is a Q&A section. If you have any questions after the presentation, you're more than welcome to speak up. So let's just straight away jump into the qualification. There is a saying that the secret to getting ahead is getting started. So if you really want to move forward, what you have to do is the first step. जो आप पहला स्टेप लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारी आज की इस प्रेजेंटेशन में हम पहले करियर प्लानिंग को डिस्कस करेंगे. करियर प्लानिंग करते कैसे या होती कैसे और हमें करनी कैसे चाहिए. तो थोड़ा सा इस मिथ को जो हम एक्सप्लोर करते हैं, मिथ, एंड देन फिर विल टॉक अबाउट द प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन.
सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम? जनरली अगर हम पाकिस्तान में लोगों से पूछते हैं भाई आप लोगों को क्या बनना है, व्हाट यू वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द रोड, या आप क्या पढ़ना चाहते हो, तो जनरली हमारे पास ऑप्शन जो लोगों के पास होते हैं वो यही होते हैं। लोग कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है, हमें पायलट बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट आर देयर एनी अदर ऑप्शंस और नॉट? हैव यू एक्सप्लोर्ड? आपने रिसर्च किया है? देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये कि हम सब जो लोग हैं हमारे अंदर, वी आर डिफरेंट एनिमल्स, लेकिन हम सब में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है कि हम तमाम लोगों के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी सलाहियत जरूर है जो हमें यूनिक बनाती है दूसरे लोगों से। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट दैट रेयर हिडन थिंग इन आवरसेल्फ, कि हमारे अंदर वो ऐसी कौन सी खूबी है, वो सलाहियत है जिसको हम अगर जिस पे हम फोकस करें और मेहनत करें तो वी कैन गो टू एनी पॉइंट ऑफ सक्सेस, वॉट एवर वी ड्रीम इट विल बी पॉसिबल फॉर अस। बट जनरली स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ क्या होता है व्हेन इट कम्स टू करियर प्लानिंग, हम लोग भेड़ चाल को देखते हैं। भाई आजकल किसका, हम लोग जो है वो डिस्कशन लोग कर रहे होते हैं, भाई आजकल ट्रेंड किसका है। एक दौर था, जब मैं अपनी जो है वो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के बाद अपनी जो है वो अंडर ग्रेड डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ परसू कर रहा था, तो उस टाइम जो है बहुत सारे लोग जो है वो आईटी में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे अपॉर्चुनिटी। तो मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा भाई कि आप क्या करना चाहते हो, या आप क्या करने का सोच रहे हो? ही सेड मैं इट करूंगा। तो मुझे समझ नहीं आया क्या होता है ये इट। देन आई आस्क्ड हिम व्हाट इज इट, ही सेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात यह है कि आपने आईटी के बारे में सुना तो, या किसी भी क्वालिफिकेशन के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने उसको एवेल्युएट किया है? आर यू फिट फॉर दैट क्वालिफिकेशन और नॉट? डू यू रियली वांट टू गेट होल्ड ऑफ दैट क्वालिफिकेशन टू द सक्सेस विच यू आर लुकिंग फॉर? ये सारी मिथ्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है व्हेन इट कम्स टू करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग में यू हैव टू हैव योर ओपन माइंड। आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। देयर हैज टू बी वन वन ऑप्शन जो आपका टॉप मोस्ट फेवरेट ऑप्शन हो, जिसके ऊपर आप सारी अपनी प्लानिंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव अ बैकअप प्लान एज वेल। अगर आपका ऑप्शन वन वर्कआउट नहीं किया तो फिर आपको क्या करना है? ये आपको अगर ऑप्शन वन जो आपने सोचा है वो ना होने के बाद नहीं सोचना है, ये सारी प्लानिंग आपको पहले से करके रखनी है कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, बट अगर यहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ या ये क्वालिफिकेशन मैं एक्वायर नहीं कर सकता तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ करियर प्लानिंग। सो हैव यू हर्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट द प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन? ये क्या होती है, किस तरीके से इस क्वालिफिकेशन को हम लोग परसू कर सकते हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है। देखिए हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग और फाइनेंस का एक ऐसा एरिया है जिसकी जो रीच और रेलिवेंस है वो पूरी दुनिया में हमेशा रेलिवेंट रही है और रहती दुनिया तक रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से इफ यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल या एक कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, या इफ यू आर टीचिंग स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, हो सकता है आपकी उस यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में किसी डॉक्टर या इंजीनियर की जरूरत ना हो, लेकिन आपके उस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के बंदे की जरूरत जरूर होती है। फाइनेंस के लोग, अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लोग, वो लोग हैं जिनकी नीड हर इदारे को होती है। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस क्वालिफिकेशन, या ये जो प्रोफेशन है ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है। बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की नीड हर जगह नहीं होगी, लेकिन अकाउंटेंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स, स्पेशली दी प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इनकी नीड हर इदारे को होती है। हर उस इदारे को होती है जहां मनी या ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है। जहां भी पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट यानी स्पेशलाइज लोगों की नीड हमेशा रहती है। एंड दैट इज द रीजन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनका जो अर्निंग पोटेंशियल होता है वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा होता है। उनकी सोसाइटी की रिस्पेक्ट या उनका करियर प्रोग्रेशन या उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, इट्स वेरी लग्जरियस बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस जो वो अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन एंड द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एंड globally as well. Let's talk about ACCA qualification. What is this ACCA? ACCA is one of the professional accounting body
It was founded back in 1904 in UK. It's a UK-based qualification. It's a professional qualification. दुनिया में जितनी टॉप मोस्ट अकाउंटिंग बॉडीज है, ACCA is one of the top most accounting body in the world. ACCA is the founder member of the IFAC, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, उसका फाउंडर मेंबर है ACCA. हमारे पाकिस्तान में भी ये क्वालिफिकेशन पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं, वी हैव 2,47,000 मेंबर्स. मेंबर्स क्या होते हैं ये हम आगे जाके आपको बताएंगे. इस वक्त जो करंट हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम फ्यूचर मेंबर कहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो दुनिया में ACCA क्वालिफिकेशन को, प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन को परसू कर रहे हैं, उनकी तादाद है 5,26,000, 5,26,000. इसी तरीके से वी आर ऑपरेटिंग इन 117 offices in 51 countries. 51 countries में across the globe ACCA has the presence in terms of offices. सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो we have 6 offices in Pakistan, which includes Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Peshawar, and Faisalabad. We have over 7,900 approved employers across the globe. We have 302 approved learning partners, and we have over 2,000 exemption accreditation program with 971 institutions. अगर हम recognition की बात करें ACCA qualification की, तो there are 4 types of recognition: statutory recognition, framework recognition, professional body recognition, and academic recognition. What does this statutory recognition means? This means कि हमारी जो qualification है उसको Security Exchange Commission of Pakistan recognize करता है, State Bank करता है, FBR recognize करता है, Ministry of Finance करती है, AGP करता है हमारी qualification को recognize पाकिस्तान में, Pakistan Stock Exchange करता है. If you talk about the professional bodies, so all जो leading हमारी professional bodies है National Education Framework, which include ICAP, ICMAP and PIPFA, ये तीनों ACCA qualification को recognize करती हैं as a global accounting body. Framework में Higher Education Commission Pakistan, Intermediate Board Chairman Committee, Punjab Board Technical Education, Sindh Board Technical Education, KP Board, all the board and the governing authority in the National Education Framework authority in Pakistan recognizes the ACCA qualification. And we have partnership with the academic qualification institution as well, like LUMS, NURST, IBA, UCP, IM Sciences, FAST, and UMT. So apart from this, we have employer recognition as well in Pakistan. We'll talk in detail हमारी employer recognition और social recognition के हवाले से in later part of this presentation. Why ACCA? What's important in ACCA? It's a recognized around it is recognized around the world. It's a research-based organization. ACCA qualification and what we do, we develop your skills and knowledge, which helps you to become a work-ready trainee. Work-ready trainee क्या होता है? देखिए आजकल जब employers hiring करते हैं तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि work ready हो, यानी organization को कम से कम time spend करना पड़े लोगों को सिखाने में. They want execution, they want deliverable, they want outcome. So ACCA is one of the qualifications which develops you, which enables you to work as a work-ready trainee. And इसका जो curriculum है, that it is very much flexible. It can fit according to your circumstances. Worldwide member network है हमारा, which we'll discuss in detail. Generally, finance professionals के काम क्या होते हैं? They take strategic decisions. They decide the best source of finance. They decide which business to acquire. They detect frauds. They ensure tax compliance. They investigate money trails. So ये सारी चीजें जितनी भी बड़ी इदारे हों या छोटे इदारे हों, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं. ये डिसीजन मेकिंग एग्जिस्ट कर रही होती है. एंड हु टेक केयर ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग? इट्स द प्रोफेशनल अकाउंटेंट. Professional accountant like ACCAs, ACCA members. So if you become ACCA member, you will be the part of this decision-making process, whatever the organization you are working. So as an ACCA student, you have certain multiple starting points. You have different sectors where you can work as per your need, as per your own choice, and specialize in any field as well. हमारे पास जो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप इस क्वालिफिकेशन को शुरू कैसे कर सकते हैं. व्हाट आर द एंट्री पॉइंट्स?
ओवरऑल अगर आप ACCA क्वालिफिकेशन की बात करें तो इट कंप्लाइज ऑफ 3 विच इज एग्जाम, एथिक्स एंड एक्सपीरियंस। सो ऑल टुगेदर अगर मेन ACCA क्वालिफिकेशन की आप बात करें तो उसमें 13 एग्जाम होते हैं जो कि 3 लेवल्स में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑनलाइन एथिक्स का पार्ट करना होता है एंड यू आर रिक्वायर्ड फॉर अ 3-year एक्सपीरियंस। जब आप ये तीनों कॉम्पोनेंट को मुकम्मल करते हैं यू बिकम एन ACCA मेंबर and that is the highly recognized qualification within the ACCA. Once you become ACCA member, you can roam around globally. Even after passing these 13 exams, there are lots of opportunities available for you in Pakistan and globally as well. At the moment, अगर आप बात करें so professional accountants की जो need है, this is the highest paid job, this is the highest job in demand in Pakistan and globally as well. इस वक्त अगर आप देख रहे हैं या आप सुन रहे होंगे कि हमारा टैलेंट जो है बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन आउट हो रहा है, तो जो ब्रेन ड्रेन आउट हो रहा है उसमें जो मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ शेयर है दीज आर फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, बिकॉज पाकिस्तान से बाहर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की इतनी ज्यादा नीड है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल अकाउंटेंट दे आर एबल टू मूव स्विफ्टली फ्रॉम पाकिस्तान टू एनी अदर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. So there are different entry and exit points for ACCA qualification. I'll give an example. Let's say if you're thinking about doing a master's qualification right after your matriculation, so आपको कम से कम 8 साल चाहिए, 2 साल intermediate के, then 4 साल आपको undergraduate degree के, and then you need 2 years for your master's program without any experience, जहां आपका कोई practical experience नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको 8 साल चाहिए होते. On the other hand, if you are talking about the ACCA qualification and you start after मैट्रिक, सो मैट्रिक के बाद आपको फाउंडेशन डिप्लोमा करना होता है. फाउंडेशन डिप्लोमा में हमारे पास 7 पेपर होते हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. फाउंडेशन डिप्लोमा जनरली 12 से 18 महीने में हो जाता है एंड देन यू मूव टू ACCA क्वालिफिकेशन जहां आपको 10 पर्चे देने होते हैं एंड देन उसके बाद आपको 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है. सो अगर मैट्रिक के बाद आप ACCA शुरू करते हैं तो इन माय आईज आई थिंक within 5 years you become an ACCA member जिसके पास क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हुई भी होती है एंड उसके पास 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होता है, जिसके बाद आप ACCA मेंबरशिप ले लेते हैं. Within 5 to 6 years you can get the ACCA membership with the relevant experience. इसके अलावा आपके पास आप इंटरमीडिएट के बाद भी शुरू कर सकते हैं. इफ यू हैव डन योर A levels, आप A levels के बाद भी शुरू कर सकते हैं. और आपने अगर कोई ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट डिग्री के प्रोग्राम अगर किया हुआ है उसके बाद भी आपका एंट्री पॉइंट अवेलेबल होता है. उसमें आपके नंबर ऑफ पेपर्स कम होते हैं. डिपेंड्स व्हाट इज योर एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. अकॉर्डिंग टू दैट स्टार्टिंग पॉइंट आपको जो है वो पे नंबर ऑफ पेपर्स डिसाइड होते हैं. जनरली पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद लोग परसू करते हैं ACCA क्वालिफिकेशन एंड दे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फाउंडेशन डिप्लोमा एंड then ACCA exams as well along with the 3 years experience. So just one question here, that as you said कि मैट्रिक के बाद भी किया जा सकता है, तो मैट्रिक जैसी बात है कि इट्स अ गवर्नमेंट सिस्टम. इसके अलावा वी हैव आल्सो हैव द आगा खान एजुकेशन बोर्ड, और जैसी बात है कैम्ब्रिज O लेवल्स भी है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बाद भी हम डायरेक्टली बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हमने व्हाट वी हैव डन, देखिए पाकिस्तान में एक मिथ है, अगर किसी को हम बताएं हमने इंटरमीडिएट नहीं किया तो क्या आपने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट ही नहीं किया है, तो वो एक बड़ा अजीब सा होता है. तो व्हाट वी हैव डन, हमने ACCA क्वालिफिकेशन को नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क पे भी उसको मैप किया है. ठीक है, IB जस्ट लाइक जैसे A लेवल्स का स्टूडेंट होता है इमरान, व्हेन दे कंप्लीट देयर A लेवल, अगर उनको किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में एडमिशन लेना होता है दे हैव टू apply for an equivalence certificate which is issued by IBCC, Intermediate Board Chairman Committee. सेम हैपेंस विद द ACCA क्वालिफिकेशन. अब ACCA क्वालिफिकेशन में क्या, जैसे फर्स्ट करें एक स्टूडेंट है उसने मैट्रिक के बाद फाउंडेशन डिप्लोमा स्टार्ट किया, आप मैट्रिक के बाद फाउंडेशन डिप्लोमा स्टार्ट करें या इंटरमीडिएट के बाद, आपको टाइम फ्रेम सेम लगता है, यानी 12 से 18 महीने या 16 महीने स्टूडेंट को लगते हैं वो 7 पेपर्स को इजिली कंफर्टेबली पास करने. जो बहुत क्रीम स्टूडेंट होता है, हाई पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का स्टूडेंट होता है, वो तकरीबन 9-10 महीने के अंदर ही आपका जो वो है पेपर्स कंप्लीट कर लेता है, 7 पेपर. बट ओवरऑल अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें 12 से 16 महीने, मैक्सिमम 18 महीने, 18 महीने भी बहुत रेयर है. लेकिन होता क्या है, फर्ज करें कि स्टूडेंट ने मैट्रिक के बाद फाउंडेशन डिप्लोमा स्टार्ट किया, ठीक है जी, और वो 7 पेपर उसने पास किए, देन they can go to any technical board, पंजाब टेक्निकल बोर्ड, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, KP बोर्ड ऑफ टेक्निकल, वहां से उनको सिर्फ 3 पेपर पास करने, बिजनेस मैथ्स, इकोनॉमिक्स
एंड स्टैट्स, ये 3 पेपर अगर स्टूडेंट एडिशनली पास करता है, मैट्रिक के बाद उसने फाउंडेशन डिप्लोमा के 7 पेपर्स किए, वो इंटरमीडिएट नहीं कर रहा है, ठीक है जी। उसे 7 पेपर एफडी के पास किए, 3 पेपर किसी भी टेक्निकल बोर्ड से दे, केपी टेक्निकल बोर्ड, सिंध बोर्ड टेक्निकल बोर्ड या पंजाब बोर्ड टेक्निकल बोर्ड। और 3 पेपर कौन से देने उसने? बिजनेस मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, जिसका सिलेबस का लेवल वही है जो इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। हमारे पास जनरली जो लोग फाउंडेशन डिप्लोमा करते हैं वो इन 3 पेपर्स की ट्यूशन भी नहीं लेते हैं, वो सिंपली बुक्स परचेज करते हैं और उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतना मेच्योर हो चुका होता है फाउंडेशन डिप्लोमा के बाद कि वो खुद उसको स्किम थ्रू करके दे जस्ट प्रिपेयर विद इन 2 to 3 months फॉर दीज 3 पेपर एंड दे अपीयर फॉर दीज 3 एग्जाम। जब वो 3 पेपर अपीयर कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, टेक्निकल बोर्ड उनको एक मार्कशीट देता है, ठीक है। जैसे इंटरमीडिएट करने के बाद आपको मार्कशीट मिलता है, वैसे वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या केपी टेक्निकल बोर्ड आपको स्टूडेंट को एक मार्कशीट इशू करेगा कि इस स्टूडेंट ने ये 3 पेपर पास कर लिए। आपके पास 3 पेपर का मार्कशीट आ जाता है। देन आप क्या करते हैं, आप जैसे ए लेवल का स्टूडेंट आईबीसीसी को कांटेक्ट करता है इक्विवेलेंस के लिए, हमारा स्टूडेंट भी आईबीसीसी को कांटेक्ट करता है। वो हमारा फाउंडेशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भेजेगा वहां पे और ये 3 पेपर की मार्कशीट भेजेगा। और जिस तरीके से ए लेवल के स्टूडेंट को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ हमारे स्टूडेंट को जिससे मैट्रिक किया है उसको 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क पे इंटरमीडिएट का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें वही तरीके से परसेंटेज लिखी होती है जैसे ए लेवल स्टूडेंट के लिए। और उसके बाद वो पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेट से वो फाउंडेशन डिप्लोमा के बाद अगर वो एसीसीए नहीं परसू करना चाहता या करना भी चाहता है, साथ में किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहता है, that IBCC certificate is equally acceptable at all big universities and small universities in Pakistan, be it IBA, be it LAMS. So मैट्रिक के बाद, let's say if you are thinking loud, आपको अपना टाइम सेव करना है, you don't want to do intermediate, आप मैट्रिक के बाद एसीसी को शुरू कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है। जस्ट यू हैव टू अपीयर फॉर 3 more एडिशनल एग्जाम। तो मतलब हम ये कि स्टूडेंट को पैरेलल क्या भी बता, किया जा सकता है एंड यू कैन पैरेलल गेट भी बैक टू द किया जा, नॉर्मल सिस्टम जो कि जी बैचलर्स का बिल्कुल है। या फिर अगर आप बाहर बिल्कुल जाना चाहते हैं तो आप बाहर चले जाएंगे तो आपको वही 12 ईयर एजुकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल। सो व्हाट वी कॉल इट कलेक्ट क्वालिफिकेशंस अलोंग द वे। यानी आप एसीसी के रूट को आपने शुरू किया मैट्रिक के बाद, एंड उसके बाद आपको मिलता क्या है, देखिए पहली चीज जो आपको मिलेगी इंटरमीडिएट इक्विवेलेंस मिल गई फाउंडेशन डिप्लोमा के बाद। फिर एसीसी के एग्जाम में हमारे पास 3 लेवल है, नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल लेवल। स्किल्स लेवल तक जब आप कर लेते हैं, आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाती है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की, बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग की। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद, and Oxford Brookes University is one of the top leading business school in UK. It's a UK based university. ठीक है, आपको इसका सिर्फ कोई पेपर नहीं देना होता है, यू पास ACCA स्किल्स मॉड्यूल एंड यू हैव टू सबमिट अ रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट। एक RAP आपको सबमिट करना होता है 3,500 वर्ड्स का, एंड उनकी एक फीस है जो आपको पे करनी होती है रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट की, वो आप सबमिट करते हैं तकरीबन 300 to 400 पाउंड्स की, एंड यू गेट दैट बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री। अब एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है हमारा पाकिस्तान का, उसने इंटरमीडिएट किया और वो ओबीयू के लिए ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग में अगर एडमिशन लेता है, तो इस अंडर डिग्री को हासिल करने के लिए से कम भी, आई थिंक आज की अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो कम से कम उसे वहां पे रहना और पढ़ने के साथ साथ कम से कम दे नीड 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए चाहिए उनको यूके में। ऑन दी अदर हैंड व्हाट यू आर गेटिंग द सेम डिग्री, उसकी रिकग्निशन सेम है। अगर इस ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी की अगर आप इक्विवेलेंस हायर एजुकेशन कमीशन से लेना चाहें, आपको वो भी सेम मिलती है। एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ द एसीसी क्वालिफिकेशन के एसीसी क्वालिफिकेशन की रिकग्निशन इतनी अच्छी है, उसकी वर्थ इतनी है कि आपको विदाउट अपियरिंग इन ओबीयू एग्जाम यू गेट दैट डिग्री, यू जस्ट हैव टू सबमिट दैट रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट। दूसरी चीज, जब आपने प्रोफेशनल एग्जाम्स भी कर लिए, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मास्टर्स आपको करना है, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मास्टर्स प्रोग्राम ले सकते हैं, मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर 2 एग्जाम। अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो आपको 2 पेपर देने, अगर आप अफिलिएट स्टेटस में यानी आपने से पेपर पास किए आपको 3 एग्जाम, यानी 3 एग्जाम देने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग भी आप एक्वायर कर सकते हैं। सो इफ यू स्टार्ट योर जर्नी आफ्टर मैट्रिकुलेशन और आपको अगर एकेडमिक डिग्री भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल का, सो इट्स वेरी मच बिल्ट इन द एसीसीए इकोसिस्टम। जो क्वालिफिकेशन का हमारा पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ये सारी चीजें बिल्ट हुई। डिपेंड करता है स्टूडेंट को कितना चाहिए। हो सकता बहुत सारे हमारे लोग हैं, दे आर गुड इनफ विद द एसीसीए क्वालिफिकेशन बिकॉज दे नो कि
उनकी जो असल डिमांड है मार्केट में, दैट इज द प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। बट हैविंग सेड दिस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपनी नीड होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा बहुत सारा टैलेंट जो है वो मिडिल ईस्ट में गल्फ रीजन में काम कर रहा होता है, ठीक है। गल्फ रीजन में वहां उनको अकामा या वर्क परमिट हासिल करने के लिए वो कहते हैं यार आपके पास डिग्री कौन सी है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, उनको डिग्री भी चाहिए होती है। सो यहाँ पे स्टूडेंट को ये सारी क्वालिफिकेशंस हेल्प कर रही होती है, जिसके लिए उसको एडिशनल पढ़ना नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं करनी है, छोटे से स्मॉल स्टेप्स लेके दे कैन गेट द यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज वेल। Right. So if you can go to the last slide, okay, I see a lot of questions regarding that again, which had the timeline. Okay. Yeah. So basically, after metric is 6 years, after A levels is 5 years. Graduate मतलब आपने अगर कोई बैचलर्स डिग्री की है तो उसके बाद 4 साल है, और अगर अगर आपने उसके बाद मास्टर्स अगर आपने कर लिया है तो इट्स 4 years, इज इट? एग्जैक्टली लेकिन अंडर ग्रेड और ग्रेड के अंदर जो 4 साल हम बता रहे हैं ये पढ़ने के नहीं है, 4 साल विद एक्सपीरियंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट आता है एंड दैट स्टूडेंट इज अ बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग ग्रेजुएट ऑफ लम्स या आईबीए, ठीक है, या किसी और अच्छी बाहर की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है और आपने एक अंडर ग्रेड डिग्री की है लेकिन बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग में। हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया 13 एग्जाम, सो आउट ऑफ दोस 13 एग्जाम 9 एग्जाम विल बी एग्जेम्प्टेड, सो यू विल बी लेफ्ट विद 4 एग्जाम। वो 4 पेपर आप एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं, यू बिकम एसीसी फिर, एंड यू कैन गेट 3 ईयर एक्सपीरियंस। ऑल टुगेदर 4 साल में यू बिकम एसीसी मेंबर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। बट What do you इवन mean by experience? Like you'll be ये working रेलिवेंट somewhere? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। Okay. जैसे आपने लोकल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क पे आपने सुना होगा, जैसे आईकैप की जो क्वालिफिकेशन वो कहते हैं ना ऑडिट फर्म में उनको काम करना होता है, तो हमारे केस में क्या होता है, उनका 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, एसीसी क्वालिफिकेशन में आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बट हम लिमिट नहीं करते हैं कि ऑडिट में आपको काम करना है, हम ये कहते हैं कि यू हैव टू वर्क विद इन द बाउंड्रीज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। आप ऑडिट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप बीएफएसआई के अंदर काम कर, वेर एवर यू वांट टू वर्क you can work within the boundaries of finance and account under the supervision of a qualified accountant for 3 years and you become ACCA member. Right. Can we move to the next slides now? Yeah, sure, please. Thank you. तो हमने बोला फाउंडेशन डिप्लोमा, तो फाउंडेशन डिप्लोमा में ये 7 पेपर्स होते हैं, अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस MA1 का हमारा एक पेपर है मैनेजर। सो दीज आर 7 पेपर, जनरली 12 से 16 महीने के अंदर हमारे स्टूडेंट जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद एसी से शुरू करते हैं पाकिस्तान में, वो ये 7 पेपर्स कंप्लीट कर लेते हैं। वंस दे कंप्लीट दिस 7 पेपर दे मूव टू दी ACCA क्वालिफिकेशन। ACCA क्वालिफिकेशन में आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 3 एरियाज हैं, 3 लेवल्स हैं, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड स्किल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल। जब आप 7 पेपर्स फाउंडेशन डिप्लोमा के आप कर लेते हैं तो आपको ये अप्लाइड नॉलेज का जो पार्ट है, जो फर्स्ट लेवल, ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। आप डायरेक्टली शुरू करते हैं अप्लाइड स्किल्स। अप्लाइड स्किल्स के आप एग्जाम देते हैं, देन आप एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स का मॉड्यूल देना होता है आपको, और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल। अप्लाइड स्किल्स में आपके पास यहाँ 6 पेपर हैं और प्रोफेशनल लेवल में आपके पास 4 पेपर हैं, 2 इसेंशियल्स के पेपर हैं और 4 ऑप्शनल पेपर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था करेक्ट क्वालिफिकेशंस अलोंग दी वे, तो फाउंडेशन डिप्लोमा आपने जब किया तो आपको वहां पे आप यहाँ पे जो इक्विवेलेंस ले सकते हैं आईबीसीसी की, ठीक है, इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंस अगर आपने मैट्रिक किया है। सूनर जैसे ही आपने अप्लाइड स्किल्स के 6 पेपर्स करते हैं आप, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिट एश्योरेंस, ये पेपर्स आपने कंप्लीट किए, यू आर एलिजिबल टू रिसीव बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री। आप ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी को रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं अपना, ठीक है, वो अप्रूव होता है एंड देन यू गेट बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग। सिमिलरली व्हेन यू अपीयर फॉर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, ये आप प्रोफेशनल एग्जाम्स कंप्लीट करके आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शुरू कर लेते हैं अपना, एंड देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अब बात ये है कि हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है पाकिस्तान में। सो वी हैव अप्रूव लर्निंग पार्टनर नेटवर्क अक्रॉस पाकिस्तान, तमाम छोटे बड़े शहरों में हमारे अप्रूव लर्निंग पार्टनर है। 2 किस्म के हमारे पार्टनर्स होते हैं, एक प्लैटिनम पार्टनर्स होते हैं हमारे एंड दूसरे गोल्ड पार्टनर्स होते हैं। ये एजुकेशन लर्निंग एस्केप नेटवर्क हमारा पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, इवन इन एबटाबाद एज वेल।
बट अगर नॉर्दर्न एरियाज में है, नॉर्दर्न एरियाज के लोगों को हमने देखा वो ज्यादातर बड़े सिटीज की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, मोस्टली दे आर इन कराची। सो कराची में हमारा बहुत अच्छा लर्निंग पार्टनर्स का नेटवर्क अवेलेबल है, जो आपको फैसिलिटेट करता है, जो आपको सपोर्ट देता है, जो आपको हेल्प करता है टू नेविगेट योर ACCA क्वालिफिकेशन journey. Similarly, it is available in other big cities as well and smaller cities as well in Pakistan. एंड पाकिस्तान के बाहर भी हमारा ये नेटवर्क वेल एस्टेब्लिश है। किसी भी दुनिया में अगर आप जाके पढ़ना चाहते हैं ACCA क्वालिफिकेशन, दैट इज वेरी इजी। लेकिन जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं, उसकी ब्यूटी ये होती है कि आपको कोई उसके इक्विवेलेंस नहीं देनी है। फर्स्ट कह रहे हैं आपने 6 पेपर पाकिस्तान में पढ़े, एंड देन यू गो टू UK या ऑस्ट्रेलिया आप मूव करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां जाके नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर लेफ्ट विद 7 एग्जाम्स, तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, you are left with only 7 exams. So that is the beauty of a global qualification. कि global qualification की existence इस चीज पे थी कि जहां भी आप दुनिया में रह के पढ़ना चाहें, the curriculum and the examination is same throughout the world. पाकिस्तान में आप एग्जाम दें, पाकिस्तान में बैठ के आप ACCA करेंगे, दुनिया में कहीं भी आप बैठ के ACCA करते हैं, आपकी रिकग्निशन एम्प्लॉयबिलिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो रेट है, वो सेम होता है हर जगह। इफ यू स्टडी विद आर अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, देखिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट हाँ जनरली पाकिस्तान में 99% लोग जो है वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, वो हमारे अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर के पास ही पढ़ते हैं। एंड इफ यू स्टडी विद आर अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर ग्लोबली, there is a 25% more likely chance that you pass and succeed your exam, or you succeed your exam with additional uh, you know marks that helps you to brighten your future, that helps you to secure your future as well, because एक सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत जरूरी है होता है नॉलेज की टेस्टिंग के लिए, and जो हमारा अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर जो है इंश्योर करता है ग्लोबली। इसके अलावा हमारी ACCA कम्युनिटी अवेलेबल होती है स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए वर्क प्लेस पे जहां आप काम कर रहे होते हैं। हमारे लर्निंग कम्युनिटी के चैनल्स अवेलेबल हैं, वर्चुअल सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है। इन केस आई विल गिव एन एग्जांपल, फर्स्ट करें आपका कल एग्जाम, यू आर डूइंग योर ACCA और रात को 11 बजे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो व्हाट यू विल डू, आर यू गोइंग टू try and trace your teacher? That is one of the option if you get hold of your teacher. अगर नहीं तो how you are going to help with your query? You can simply go to the ACCA learning community जहाँ लाखों लोग available है आपको सब। You raise one question and you get thousands of responses for your question, for your queries. So this is how the entire ecosystem and the support structure works for our ACCA students globally and in Pakistan as well. सपोर्ट आपके लिए कौन कौन से मार्केटिंग सपोर्ट अवेलेबल है, जहां आपके लिए इवेंट्स कराए जाते हैं, आपकी सोशल रिकग्निशन पे काम किया, आपको न्यूज एंड अपडेट्स दी जाती हैं। हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का एरिया होता है जो आपकी एम्प्लॉयर रिकग्निशन पे काम करता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपके काम करता है। हमारी कस्टमर सर्विसेज की सपोर्ट अवेलेबल होती है जो आपको हेल्प करती है आपके तमाम ट्रांजैक्शन सपोर्ट कैंपेन्स के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए। इसी तरीके से हमारी एजुकेशनल सपोर्ट है, मेंबर अफेयर, वंस यू बिकम ACCA मेंबर देन फिर हमारा मेंबर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम कर रहा होता है, आपकी रिकग्निशन पे काम कर रहा होता है। If we talk about the employers, these are very few names of Pakistan. मैंने बहुत थोड़े से नाम यहाँ सेलेक्ट करके, we have a big network of employers in Pakistan जो टैलेंट की हायरिंग करते हैं, ACCA स्टूडेंट्स की हायरिंग करते हैं। हमारे पास जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो ये वंस यू पास योर ACCA स्किल्स मॉड्यूल, या आप व्हेन यू आर लेफ्ट विद 2 और 3 पेपर्स, हमारे पास एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे, एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें स्टूडेंट्स प्रोवाइड करें जो हमारे साथ काम कर सकें। ये ऑडिट फर्म में भी होते हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होते हैं, ये बैंकिंग इंडस्ट्री, ये जितने आप नाम देख रहे हैं ये तमाम इदारे और ऐसे बहुत सारे और इदारे पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कि बड़ी नेशनल कंपनी, दे ऑल हायर ACCA स्टूडेंट, ACCA affiliate and ACCA member. 1 in 5 ACCA professionals are working on the top-notch position, which is called CEOs, CFOs, and beyond that as well. 90% of employers are likely recommend ACCA across the globe. We have over 8,500 approved employer network globally. So अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको कोई जॉब अगर ढूंढनी है UK में या किसी भी और
मुल्क के अंदर, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक कैरियर नेविगेटर का प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाते हैं, आप अपना सीवी अपलोड करते हैं, एंड दुनिया में हमारे जितने भी एम्प्लॉयर है, दे कैन सी योर सीवी, इफ दे हैव अ रिक्वायरमेंट they will contact you directly. This is how our global employer relationship works for our ACCA student, affiliate and ACCA member. And that is the one of the reason कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो टैलेंट है ACCA का पाकिस्तान में, they get easily they easily get migrated from Pakistan to any other part of this world in terms of employment. Next step, if you are thinking loud about the professional accounting qualification, so here it is. ACCA is one of the good option available for you. Log on to ACCA website, register your interest today, and start your qualification with the professional accounting. So that's all from my side, Imran, in terms of presentation. But we can take the questions now, Yes. and if you have any questions, हम वो भी ले सकते हैं, live queries भी हम ले सकते हैं. इसके अलावा आई एम लीविंग माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दीज आर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन सेव, आई हैव पुट माय मोबाइल नंबर एज वेल. प्लीज मुझे जब भी आप लोग मोबाइल पे रीच आउट करें, कोशिश करें कि कॉल ना करें, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अलॉट, आई एम वन ऑफ द सीनियर स्टाफ. सो आप वॉइस नोट मुझे भेज दें, रेफरेंस है कि आपने AKU EB का सेशन लिया था, या आपने रिकॉर्डिंग देखा, या आपने AKU EB के रेफरेंस से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें. जो भी क्वेरी है, just drop me a voice note on WhatsApp, and I will ensure that I will get back to you at my earliest. This is the best possible option to contact me, to reach out to me. The other option could be you can drop me an email and I'll get back to you as soon as possible. So now, Imran, over to you for queries, for question and answers. Thank you very, very much. I've just mentioned this. सवालात हमारे पास बहुत आ रहे हैं. I'll just quickly filter it out. एक तो ये बता दें कि किसी ने अगर प्री मेडिकल वगैरह स्टार्ट कर दिया है या डॉक्टर पहले बनना चाहते थे, फिर किसी ने उनसे कह दिया कि भाई कहाँ किस फील्ड में चले गए हो, एंड दे रियलाइज कि हाफ वे दे आर वांट टू स्विच, तो किस तरह से, क्या इसका तरीकाकार है? देखिए भाई, इट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, इमरान, कि वो कब स्टार्ट करना चाहता है. ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जितनी जल्द, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. लेकिन इवन इफ यू आर स्टक विद इन वन क्वालिफिकेशन, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि प्री मेडिकल आप कर रहे हैं, आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या आप कॉमर्स कर रहे हैं. भाई आप जो भी कर रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू स्टार्ट योर ACCA क्वालिफिकेशन. सो इफ यू आर completing matriculation, या intermediate, it regardless of your specialization, that's pre-med, engineering, computer science, commerce, whatever it is, humanities, you can start the foundation diploma. कोई आपको एडिशनल पेपर नहीं देने होंगे कि आप प्री मेड से हैं तो आपके पेपर ज्यादा होंगे, आपको वही 7 पेपर देने. हाँ, इसमें मैं एक चीज मेंशन करूं, जो लोग इंटरमीडिएट कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद स्टार्ट करते हैं एज कंपेयर टू प्री मेड और प्री इंजीनियरिंग, उनको 7 के बजाय 5 पेपर देने होते हैं फाउंडेशन डिप्लोमा के. उनके जो 2 पेपर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं. और उसका रीजन ये है कि जो हम अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते हैं, उसमें से काफी हद तक सिलेबस इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कवर होता है. सो ACCA, व्हाट at ACCA we do, because it's a professional body, it's a multinational organization, we respect the qualification, कि हम स्टूडेंट की उस क्वालिफिकेशन को रिस्पेक्ट देते हैं जो वो पढ़ कर आया, और उसके हिसाब से हम उसको एंट्री पॉइंट बनाते हैं. सो इंटरमीडिएट कॉमर्स के बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको फाउंडेशन डिप्लोमा के 5 पेपर देने होते हैं. ठीक है, बट अगर आपने प्री मेड और प्री इंजीनियरिंग किया है, आप 7 पेपर दें. मुझसे अगर कोई पूछता है, मैं कहता हूँ भाई देखिए, फाउंडेशन डिप्लोमा इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट. स्क्रैच से हम आपको लेके चलते हैं, हैंड होल्डिंग आपकी कर रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. एक और चीज इमरान मैं यहाँ बताना चाहूंगा, इट्स नॉट अबाउट दी अकाउंटिंग और ACCA क्वालिफिकेशन. देखिए आजकल का जो दौर है ना, वो है स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन का भाई. ठीक है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ना, जो एंड प्रोडक्ट लोग देख रहे हैं, वो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है. आपने अभी क्वेरी मेरे साथ रेज की इमरान, मेडिसिन की, प्री मेडिकल की. ठीक है ना, सो लेट्स से इंटरमीडिएट प्री मेडिकल बच्चा कोई करता है. ठीक है ना, प्री मेडिकल के बाद वो क्या करेगा, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एडमिशन लेता है MBBS करने के लिए. ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में. अब MBBS क्या चीज है, MBBS एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है भाई. ठीक है ना, 4 साल या 5 साल वो बच्चा स्पेंड करता है. व्हाट व्हाट ही और शी गेट्स,
एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिंपल MBBS, बट उसको करियर में सक्सेस हासिल करने के लिए आफ्टर डूइंग MBBS उसको जो चीज आगे करनी होती है, यानी MRCP, FRCP, MRCS या FRCS, जो स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, वो सारी सर्टिफिकेशन ही होती है। सो इस वक्त आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो तो वहां स्पेशलाइजेशन की ही नीड है। सो अगर आप अकाउंटिंग फील्ड की बात करते हैं या फाइनेंस प्रोफेशन की बात करते हैं, तो इसमें भी जो हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं या हाईएस्ट रिकग्नाइज जो लोग हैं, इंडिविजुअल है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं अपनी फील्ड में। एंड ACCA इज वन ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, one of the specialized qualification which helps individual to achieve their milestone in their career. So thank you very much. I don't know, somebody's asking whether ACCA students why can't they apply for OBU after 2026? Is there a new regulation coming in? 2026 जी बिल्कुल, इसमें ये है कि हमारी एक पार्टनरशिप है OBU के साथ, ठीक है, दैट इज एक्सपायरिंग इन 2026, बट ये है कि व्हाई कांट स्टूडेंट अप्लाई। देखिए अभी तो 2026 नहीं आया है, तो वंस दैट 2026 इज देयर यू विल हैव मच बेटर ऑप्शन, दी अदर ऑप्शन विल बी देयर। सो हमने जो आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बताया या जो मैंने टर्म यूज की है, कलेक्ट क्वालिफिकेशन अलोंग द वे। सो अगर OBU की BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री है तो देयर विल बी समथिंग एल्स, सम अदर यूनिवर्सिटी, बिग यूनिवर्सिटी, बट ये स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है ये हमेशा सेम रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगी। So until the यूनिवर्सिटी का current नाम चेंज students हो or the current students are applying और जो अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं 2026 तक अगर वो पहुंचते हैं और उसके बाद वो applicable नहीं होता, you're saying you will have an alternate. देयर विल बी मच अदर ऑप्शन डेफिनेटली। ऐसा थोड़ी कि 2026 के बाद जो है वो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए, इट विल नॉट बी लाइक दैट। Right. And what about looking at the financial situation of Pakistan? एक तो ये प्रॉब्लम हो गया है because everything is in pounds, I think ACCA admission fees वगैरह। तो you must have also seen that बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद अफोर्ड ना कर पाए अब ये। तो क्या आप लोग कोई मेजर्स ले रहे हैं इसमें with your university affiliates partnerships to give some kind of leeway to the Pakistani students also, because पैसे भेजने का भी मसला है मुल्क से बाहर, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपके क्वेश्चन में 2-3 एरियाज हैं, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा, डिटेल में डिस्कस करना। देखिए पहली बात तो ये है कि इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन, ट्रस्ट मी, हमारी ACCA की क्वालिफिकेशन अभी भी बहुत, यानी इफ यू कंपेयर इट विद एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर तो रहने दे, ठीक है ना, पाकिस्तान की भी अगर किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अंडर ग्रेड डिग्री से, तो अंडर ग्रेड डिग्री भी 4 to 5 मिलियन कॉस्ट करती है इस टाइम, अच्छी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर। एंड इफ यू टॉक अबाउट ACCA क्वालिफिकेशन, इट्स अराउंड 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन इन पाकिस्तान द कंप्लीट क्वालिफिकेशन। तो अगर आप कॉस्ट की बात करें तो देयर इज नो कंपैरिजन with the academic qualification if you compare it with local universities only. फॉरेन यूनिवर्सिटीज का तो फिर अलग ही स्केल है, अलग ही उनकी फीसेस स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहां से आपको उनकी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग मिला के वो वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इट्स इन मिलियन। सो एक तो ये डिफरेंस है भाई। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग इन पाकिस्तान, ठीक है, यस वी नो, हमारी क्वालिफिकेशन जो पाकिस्तान में जो पैसे हम चार्ज करते हैं, जो ACCA, देयर आर टू साइड्स ऑफ फीसेस व्हिच आर स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू, वन इज द फीस व्हिच दे आर रिक्वायर्ड टू पे टू ACCA फॉर द एग्जामिनेशन, एंड देन द अदर फीस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लर्निंग पार्टनर, जो वो ट्यूशन लेते हैं मुख्तलिफ पेपर्स का, वो उनको पे करना होता है। उसमें भी हमारे जो, मैं लर्निंग पार्टनर का पहले आपको बताता हूँ, जितने भी लर्निंग पार्टनर है वहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है हमारे पास, उनकी कोर्स फी, इफ यू आर अ मेरिट होल्डर, अगर आप मेरिट होल्डर्स हैं, इवन वो आपकी क्वालिफिकेशन में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्काउंट स्टूडेंट को प्रोड्यूस करते हैं, अवार्ड करते हैं। अब आ जाए ACCA की फीसेस के बारे में। अगर आप ACCAglobal.com पे जाएं, हमारे ग्लोबल पेज पे, मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल बताता हूँ, वहां आपको, यानी पाकिस्तान से बाहर कोई शख्स रजिस्ट्रेशन कराता है, जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस होती है, दैट इज ग्लोबली इट इज 89 पाउंड, ठीक है जी, 89 पाउंड। बट हमारा पाकिस्तान का स्टूडेंट जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाता है और वो कंट्री के अंदर सेलेक्ट करता है ऑप्शन पाकिस्तान, तो उसको जो चीज डिस्प्ले होती है वो पाकिस्तान का रेट कार्ड डिस्प्ले होता है। ग्लोबल रजिस्ट्रेशन फीस IR फीस है हमारी 89 पाउंड, पाकिस्तान का रेट कार्ड है
45 पाउंड्स। इसी तरीके से अगर आप, I'll give an example, फर्स्ट करें आप अप्लाइड स्किल की एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं, ग्लोबल स्टूडेंट जो हमारा अप्लाइड स्किल की एग्जामिनेशन फीस पे कर रहा है वो 154 पाउंड ईच पेपर है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का स्टूडेंट जो पे करता है वो 135 पाउंड होता है। सो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि फीसेस के हवाले से एट ACC वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर डूइंग इट। इवन फॉर फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन जो है, जो ग्लोबल स्टूडेंट है वो 122 पाउंड पे करता है, 122 पाउंड एनुअल सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर की पे करता है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है जो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है फर्स्ट ईयर का, विच इज ओनली 58 पाउंड्स, ओनली 58 पाउंड्स। सो सपोर्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, बट इन रिगार्डलेस ऑफ दीज फैक्ट, अगर आप क्वालिफिकेशन की ओवरऑल कॉस्ट की भी बात करें, 1.2 1.4 मिलियन के अराउंड इस टाइम ये रेंज कर रही है क्वालिफिकेशन हमारी फर्स्ट टाइम सिटर्स के लिए। इसको आप कंपेयर करें विद एनी गुड यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेड प्रोग्राम जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में, उसकी कॉस्ट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मिनिमम मेरी नजर में जो इस टाइम क्वालिफिकेशन की अंडर ग्रेड डिग्री की जो कॉस्ट है वो 4 to 5 मिलियन का कॉस्ट है पाकिस्तान में, एंड एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन it's much cheaper in Pakistan as well. I hope I थैंक यू, नहीं have नहीं, बहुत answered your शुक्रिया question. आपका। एक थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी कि शायद लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, ACC और CA में कितना डिफरेंस है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी और अप्लाइड जो आपका है सब्जेक्ट। देखिए, इसमें दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ACC इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, ठीक है, हमारे फुटप्रिंट से अवेलेबल है, इट्स ग्लोबली। ICAP जो है वो नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क पे है, ठीक है, इट्स अ लोकल क्वालिफिकेशन, पाकिस्तान बेस्ड क्वालिफिकेशन, बट यस उनके लोग भी पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे होते हैं। बट यू इफ यू कंपेयर अकाउंटेंट, ठीक है, आई यहाँ पे कुछ एक मिथ्स हैं, वो कहते हैं कि ICAP के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू ACCM मेंबर्स। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वंस यू बिकम एन ACCM मेंबर, यानी आप क्वालिफिकेशन के कंपोनेंट्स हैं वो तीनों कंपोनेंट जब आप क्लियर कर लेते हैं, दैट इज एग्जाम, एथिक्स एंड एक्सपीरियंस, एंड व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए भाई, एम्प्लॉयर चाहिए ना, देखिए क्वालिफिकेशन या इदारे का नाम सिर्फ आपको इंटरव्यू की टेबल तक पहुंचाता है, उसके बाद जो चीज डोमिनेट करती है दैट इज योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इफ यू आर इंटेलेक्चुअल यू विल डोमिनेट। सो अगर आप ICAP मेंबर हैं या ACCM मेंबर है, व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, ऑनेस्टली मैं पाकिस्तान से बाहर की अगर बात करूं, वी ऑल आर सेम, इट्स द नॉलेज व्हिच डोमिनेट्स अ पर्सन। राइट। हमारे मेंबर्स ग्लोबली जो उनकी रिकग्निशन, इट्स एवरीवेयर, बिकॉज ये क्वालिफिकेशन जो है वो ग्लोबली अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल है, क्या ICAP का स्टूडेंट जो है वो 6 महीने के बाद लेट्स से वो वेकेशन पे चला जाता है, लेट्स से एक ICAP स्टूडेंट कहता है, या कोई भी दूसरी नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क पे जितनी भी क्वालिफिकेशन हमारी एकेडमिक भी अवेलेबल है, लेट्स पुट इट ऑन दिस वे कि नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क पे पाकिस्तान में जितनी भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है हमारी, ठीक है, उसका स्टूडेंट लेट्स से वेकेशन पे अमेरिका चला जाता है दिसंबर में क्रिसमस मनाने के लिए, बट एट द सेम टाइम ही इज स्टडीइंग एज, कैन दे अपीयर इन द एग्जाम? नो दे कांट। बट इफ यू आर स्टडीइंग एन ACC क्वालिफिकेशन, आप अमेरिका चले जाएं भाई, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर योर एग्जाम, हमारे साल में 4 मरतबा एग्जाम होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, कहीं भी है भाई आप, यू आर ट्रैवलिंग, यू कैन अपीयर फॉर द ACC एग्जाम। क्यों है इसकी वजह? इस इज द ब्यूटी ऑफ द ACC क्वालिफिकेशन, इट इज द रिकग्निशन ऑफ ACC क्वालिफिकेशन के दुनिया में हर जगह अवेलेबल। आपकी रिकग्निशन क्वालिफिकेशन की होती है जब भी तो आपकी अवेलेबिलिटी भी होती है। रिकग्निशन कैसे होती है? रिकग्निशन एग्जाम से नहीं होती, रिकग्निशन होती है एम्प्लॉयमेंट की वजह से। एम्प्लॉयर कितना इस क्वालिफिकेशन को हाथों हाथ लेते हैं, एम्प्लॉयर कितना हमारे लोगों को हायरिंग करते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट होती है तो उसकी उस क्वालिफिकेशन की ग्रोथ भी होती है। अगर हमारी क्वालिफिकेशन की दुनिया में हर जगह एग्जाम्स हो रहे हैं, उसका रीजन ही यही है कि हर जगह एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल है भाई। इज इट सेम एज लाइक यूरोप या UK में जो वैल्यू है, सेम सिमिलर इन अमेरिका एंड कनाडा एज वेल? हमारा एग्जाम मैंने आपको बताया साल में 4 मरतबा होता है, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, नंबर 1। नंबर 2, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में भी हमारी फिक्स डेट्स हैं, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा,
फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का मतलब ये कि मार्च के महीने का जो फर्स्ट मंडे होगा उससे हमारे एग्जाम शुरू होंगे और फ्राइडे को खत्म होंगे। इसी तरीके से जून में, सितंबर में और दिसंबर में पूरी दुनिया में पेपर एक साथ होता है, पूरी दुनिया में एक ही एग्जाम आ रहा होता And in terms है, of टाइम जोन का value, फर्क। in terms of value of this एग्जैक्टली qualification, as compared to other qualification, ये जो कि मेरे ख्याल है कि यूके से एफिलिएशन है, और तो उसकी अमेरिका और कनाडा में भी इतनी वैल्यू होगी in terms of the principles of सेम accounting. सेम, क्योंकि लोग सेम करिकुलम पढ़ रहे हैं। जो यूके में स्टूडेंट बैठ के एग्जाम दे रहे हैं वही सिमिलर स्टूडेंट पाकिस्तान में वही करिकुलम बैठ के सेम एग्जाम दे रहा है भाई। दोनों की जो 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 दोनों हमारी प्रोडक्ट, एक यूके में पढ़ रहा है एक पाकिस्तान में, दोनों की जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी कैसे ड्राइव होगी? हमारे सिलेबस और एग्जाम से। वो सेम है भाई दोनों के लिए। आप यूके में बैठ के पढ़ो या पाकिस्तान में बैठ के पढ़ो, या आप दुबई में बैठ के पढ़ रहे हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, या आप यूरोप के अंदर किसी जगह पे आयरलैंड में बैठ के पढ़े, the quality of the ACCA qualification, our final product is same But wherever you go. what about the accounting principle, like America में, for example, general accounting principles, तो उस हिसाब से ACCA के principles are valid in America as well. IFRS देखिए, जहां भी IFRS की इम्प्लीमेंटेशन हुई है इट्स सेम। एंड अब तो पूरी दुनिया जो हमारी है, हमारा ग्लोब जो है, वो IFRS के अराउंड जो इवॉल्व करना शुरू हो गया। Hmm. So you're saying in some of the firms in America also, IFRS को ही या follow किया जाता बिल्कुल ऐसा ही है। है. And is there a monthly, yearly subscription continuously throughout for the members? Like let's say अगर job कर रहे हैं आप 10 साल हो चुके हैं, अभी आपको वो ACCA की सब्सक्रिप्शन पे करनी होगी? देखिए, जितनी भी स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन होती हैं वो मेंबर बॉडीज होती हैं, ठीक है। एंड उसकी सब्सक्रिप्शन आपकी होती है, एनुअली होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट कभी आपने सोचा है कि ये क्यों होती है? आपने सवाल तो किया है, ये अगर स्टूडेंट ने ये आई सवाल किया है कि आई ये हैव डन सब्जेक्ट। माई MBA यूनिवर्सिटी से, तो मैंने उसके बाद उसको कोई पेमेंट्स नहीं की हैं। मेरे ख्याल है ब्रिटिश काउंसिल एग्जैक्टली, या हार्वर्ड्स वगैरह में भी आप पढ़ देते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक उसकी ईयरली पेमेंट्स नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो सब्सक्रिप्शन पे की जाती है, यही ब्यूटी है किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की भाई, चाहे आप ACCA करें या आप MRCP FRCP करें। देखिए, जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, होता क्या है, देखिए जो भी प्रोफेशन को आप परसू कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोफेशन के अंदर, उस करियर के अंदर, उस क्वालिफिकेशन के अंदर चेंजेस आती है। ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर आज है, कोई भी दुनिया की क्वालिफिकेशन, वो अगले 10 साल के बाद भी वही होगा, नहीं। मार्केट की डिमांड, एम्प्लॉयर की डिमांड से हर क्वालिफिकेशन, चाहे वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, प्रोफेशनल अकाउंटिंग हो, उसमें चेंजेस आते हैं। होता क्या है, जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है भाई, आपने MBA किया, ठीक है, लेट्स से यू हैव डन योर MBA फ्रॉम हार्वर्ड, ठीक है, you are done with your MBA, you have done your undergrad program from Harvard, 6 साल आपने वहां पे पढ़ा है, एंड यू आर डन, ठीक है। अब आपकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं भेजी, लेकिन आपने 5 साल पहले पढ़ा था। क्या आज की तारीख में इमरान कोई हार्वर्ड से MBA नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। क्या हार्वर्ड ने करिकुलम में कोई चेंजेस की होंगी? बिल्कुल की होंगी। क्या हार्वर्ड ने आपको कांटेक्ट किया या किसी और स्टूडेंट कि भाई हमने ये चेंजेस किए, ये एम्बेड करने आप अपने अंदर? नहीं। जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, उसके अंदर एक चीज कहलाती है CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी उस क्वालिफिकेशन जिसको आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को एक्वायर किया, उसमें जो चेंजेस आएंगी वो आपको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ACCA की भी यही ब्यूटी है। 40 आवर्स आपको साल के पढ़ने होते हैं, यानी प्रोफेशनल अकाउंटिंग के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, यू हैव टू रिहर्स, यू हैव टू एम्बेड दोस चेंजेस इन योरसेल्फ। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ प्रोफेशनल कॉलेज। जितने स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो कभी ऑब्सोलीट नहीं होते हैं भाई, एज कम्पेयर टू एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसकी वजह यह है कि जो चेंजेस आती है ना हर साल या 6 महीने में, वो आप एम्बेड कर लेते हैं अपने अंदर, और वो इंश्योर करता है कौन? जिस प्रोफेशनल बॉडी के आप मेंबर होते हैं। जैसे ACCA का मेंबर है आप, आपने ACCA किया है, तो ACCA क्वालिफिकेशन, ACCA बॉडी, वी एट ACCA इंश्योर्स कि हमारा मेंबर अप टू डेट रहे। वो अप टू डेट होगा ही तो वो रेलिवेंट रहेगा। एंड दैट इज द रीजन इमरान के जितने भी स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं, उनका जो साइकिल होता है अर्निंग पोटेंशियल का, वो जितने वो आगे जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ, वो बढ़ता ही चला जाता है। द मोर ग्रे हेयर यू हैव, the more money you earn, and it is because of this regulatory thing, that CPD। क्योंकि आप कभी irrelevant नहीं होते भाई। आपकी लर्निंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में दो ही सूरतों में रुकती है मेरी नजर में।
या तो आप रिटायरमेंट ले लें और या आप जो है वो कूच कर जाए. Otherwise, till the time Imran you are working, you are relevant, you are the most updated person. आई थिंक मेडिसिन के लिए तो मैंने बिल्कुल ये देखा है, एंड ऑल द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, चाहे CFA हो, ACCA हो, SCA हो, इन सब के लिए ट्रू है. लेकिन इफ़ यू सी द मोस्ट ग्रोथ वाली जो आजकल कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं, या जिसमें लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर लर्निंग करते हैं, उनके लिए ये है कि वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, नए प्रोग्राम सीखते हैं, नई Exactly. एप्लीकेशन सीखते हैं, और वो यूट्यूब से भी सीखते हैं, लिंक्डइन से भी सीखते हैं. तो उस फील्ड में मेरे ख्याल है अलग है, लेकिन यू राइट दैट फॉर लॉट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो है ये उसमें भी देखिए, सच है. उसमें रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, बट वहाँ अपग्रेडेशन की तो नीड है. मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. देखिए, आई डिड माय 1 ईयर, एक टाइम था यहाँ पे हमारा आईटी का बहुत बूम था पाकिस्तान में. मैंने 1992 में 1 ईयर डिप्लोमा किया था कराची में पेट्रोमैन इंस्टीट्यूट से, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट था. 1 ईयर आईटी का मैंने डिप्लोमा किया था. उस वक्त C++ बहुत मशहूर, यानी C++ अगर आपको आती थी आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत होता था. आज C++ का है. अगर आईटी प्रोफेशनल होता, अगर मैं अकाउंटिंग के करियर में नहीं आता, तो C++ तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता. ट्रू. Now people talk about Power BI, people talk about data sciences, machine learning, algorithm, people talk about Python और पता नहीं क्या क्या. So you need to upgrade. अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है, you need to upgrade whatever the profession, whatever the qualification you are pursuing, whether it is regulated or not. Otherwise, you will be obsolete. बट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की ब्यूटी ये होती है कि आपको खुद सोचना नहीं पड़ता है. आपको खुद नहीं देखना होता है कि प्रोफेशन में क्या चेंजेस आएंगे. आप मेंबर जिस बॉडी के भी मेंबर होते हो, जो आपको रेगुलेट कर रहा होता है, वो ही सब आपको बता रहा होता है कि भाई ये चेंजेस आई है, इसको समझो, इसको इम्बेड करो अपने सिस्टम में. सो इन टर्म्स ऑफ ऑडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, लाइक वो हायर करते हैं KPMG और CA फर्म्स को टू डू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ऑडिट अथॉरिटी इज ACCA क्वालिफिकेशन के जो होते हैं फर्म्स, वो भी ये कर सकते हैं. जी बिल्कुल, तमाम जितनी बिग फोर्स हैं या जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली, दे हायर ACCA टैलेंट्स भाई. इस वक्त हमारे पाकिस्तान में अगर आप पूछे मुझसे, हमारे पास, मैं क्वालिफाइड की बात नहीं करूंगा, क्वालिफाइड हम 3 टर्म्स यूज होती है हमारे: ACCA स्टूडेंट, ACCA अफिलिएट और ACCA मेंबर. ACCA स्टूडेंट कौन है? जिसने पूरे पेपर्स पास नहीं किए, सिंपल, वो ACCA स्टूडेंट है. ACCA अफिलिएट कौन होता है? जिसने हमारे सारे पेपर पास कर लिए और एथिक्स का मॉडल पास कर लिया, एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया, वो ACCA अफिलिएट कहलाता है. हमारे पास जो इस टाइम सबसे ज्यादा जो नीड आ रही है ना, यानी, और जो हमारी सबसे जो लास्ट रिकग्निशन ऑफ द कॉलेज, दैट इज द ACCA मेंबर. यानी आपने एग्जाम पास किया, एथिक्स पास किया और 3 साल का आपने एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया है, आप ACCA मेंबर बन जाते हैं. एंड देन यू गो अ लॉन्ग वे. ठीक है, ACCA मेंबर की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो तो सबसे हाईएस्ट है. लेकिन अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, पीपल हु आर लेफ्ट विद 2-3 एग्जाम, दे आर इन हाई डिमांड विद दिस बिग फोर्स, दीज ऑडिट फर्म. Unfortunately, हमारे पास इस टाइम एट ACCA the challenge which we have, we don't have the right talent available. क्योंकि जितना टैलेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो जा रहा है इस टाइम. क्योंकि दुनिया में इस टाइम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जितनी नीड डेवलप हो गई आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड में डाउन साइजिंग इतनी हुई कि अब मार्केट में शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है. तो हमारा टैलेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का तो पाकिस्तान में रुक ही नहीं रहा है. दे आर दैट्स इन ट्रू. हाई डिमांड. आप जैसे EY का, EY इज वन ऑफ द बिग फोर. EY का एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है EY रैपिड के नाम से. खाली EY रैपिड ने पिछले 8 महीने के अंदर 1000+ स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है पाकिस्तान में से हमारे साथ. 1000+ स्टूडेंट इन लास्ट 8 मंथ्स. एंड आई ऑल्सो नो दैट GCC में चूंकि जब से वैट रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं, स्पेशली इन द UAE एंड सऊदी अरेबिया, नाउ मे बी कतर एंड बहरीन एंड ओमान एज वेल, तो वहाँ पर बहुत अकाउंटेंसी फर्म्स जो हैं, दे डेफिनेटली नीड many ACCA स्टूडेंट्स. तो यंग एज में भी आपको हायर किया जा सकते हैं दोज फर्म्स. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. वन लास्ट क्वेश्चन, स्कॉलरशिप्स के हवाले से अगर आप कोई बताना चाहें, देयर इज एनी पोटेंशियल फॉर दैट, कोई स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहें, इज देयर अ प्रोग्राम? देखिए, हमारा एट ACCA तो ये चीज नहीं है, बट ये कि लर्निंग पार्टनर्स के पास जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप चीजें अवेलेबल होती हैं. ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं. इसके अलावा एहसान ट्रस्ट है, ठीक है, वो भी इसको जो है वो यू नो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है. हमारे उनका क्राइटेरिया है, यू हैव टू मीट दैट क्राइटेरिया एंड यू गेट दैट लोन.
to pursue the ACCA qualification. इसी तरीके से मीज़ान बैंक की भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ये चीज़ें पॉसिबल होती है। सो सपोर्ट स्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल है। इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल एज वेल कि if you you know if you are if you know achieve that merit of recognition, right, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर ऐसा ट्रस्ट के पास नहीं जाते हैं आप या किसी और सोर्स पर नहीं, इवन व्हेन यू स्टार्ट योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, आप लर्निंग पार्टनर के पास पढ़ रहे हैं, यू आर द हाई अचीवर, यू आर डूइंग फैंटास्टिक वेल, वो आपकी नेक्स्ट कोर्सेज की फीस वेव ऑफ कर देते हैं, आपको 50% 25% डिस्काउंट दे देते हैं। So basically, तो ये इसके लिए as an institution, आप लोगों को डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं, बट जो लर्निंग पार्टनर्स हैं आपके, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आई थिंक बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं, और आई एम प्रीटी श्योर आप उनको रेगुलेट भी करते होगे, आप उनकी रेटिंग्स भी एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। इन और टर्म्स ऑफ बाकी देयर एसीसी ट्रेनिंग। बिल्कुल ऐसा ही। और एसीसी फीसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल एग्जामिनेशन फीसेस क्या है और पाकिस्तान की क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक और पाकिस्तान की चैलेंज जो आप लोगों को एग्जामिनेशन। फेस हो रहा होगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। आपने ब्रेन ड्रेन की बात की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ब्रेन ड्रेन इतना होगा तो एसीसीए पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो कैसे रह जाएंगे इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, और वो कितना पढ़ाना चाहेंगे। और उसके अलावा ये कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब आप वर्क फ्रॉम होम है तो स्टडी फ्रॉम होम भी कर सकें एसीसीए की ट्रेनिंग के लिए। देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे बड़े पार्टनर्स हैं उनके डिजिटल एलएमएस अवेलेबल हैं, स्टूडेंट डिजिटली भी पढ़ सकता है, ठीक है, और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। बट ये है कि जहाँ तक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ACCA qualification, so alhamdulillah we are very much in good hands. We have a lot of pool of talent available in Pakistan and globally as well who are teaching our ACCA students. So in terms of support mechanism, that is the examination body means ACCA की अपनी responsibility होती है कि हम ensure करते हैं कि support mechanism is there. I think that was a lot. Thank you very much. I think most of the questions have been answered. For the rest of them, I will request the participants to maybe email you or WhatsApp you, just like Africa. So thank you very, very much, Khurram. It was a very, very good learning experience. बड़ी comprehensive मालूमात आपने provide की हैं. I will request you कि आप हमें ये presentation end of the session maybe tonight you can send it to me, so I will share it with all the students. So thank you very, very much. And thank you everybody, all the participants. We have about 35 आप लोगों ने join किया, and I hope you gained a lot out of it. Yes, I think this is a good slide. Thank you. If you guys want to screenshot it, please go ahead. And thank you again, Khurram. Thank you very much, Imran, for inviting me, and I wish all the students good luck. And in case if you have any queries, bhai, please send me a voice note, whatever the whatever the information you are looking for. Don't think about whether it makes sense or not. Whatever comes to your mind in terms of building your career in professional accounting qualification, you can always reach me out. You are more than welcome. Thank you That and good luck. Allah that Hafiz. is very, very kind of you. Okay, ji. Allah Hafiz. Good luck. Allah Hafiz.